Hello students. So here I am going to start the revision of this previous topic, indefinite integration. This indefinite integration is one of the important part of इंटीग्रल कैलकुलस. इंटीग्रल कैलकुलस बहुत बड़ा सेक्शन है कैलकुलस का. सो उसमें से इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ये हमारा टॉपिक हुआ है. फॉर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आई हैव टेकन 31 videos. So this is the topic that is very important. So that's why I am making separate video for this revision of indefinite integration. So in this topic we completed definition of integration, some methods of integration, that is integration by substitution, integration by parts and integration by partial fraction. And there are lots of types of substitution method, by parts method and by partial fraction method. Some theorems are also there, some formulas are also there. So we'll take all details in this video, that is the revision of indefinite integration. So first start from the definition. What is called integration? What is called indefinite integration? So definition. So this is a completely depends on differentiation. So this is, suppose derivative of f of x is equal to g of x. अगर f of x का डेरिवेटिव g of x है, so it means we know the derivative, that is g of x. This g of x is a derivative of f of x. This f of x is called as obviously antiderivative of g of x. If we know the derivative of function and we have to find the function, अगर हमें डेरिवेटिव पता है फंक्शन का और हमें फंक्शन फाइंड करना है, that process of finding function, when derivative is known, that process is called as what? Integration. So this is integral of g of x with respect to x is equal to f of x plus c. What is called integration? The process of finding function whose derivative is known is called integral, and the process of finding integral is called as what? Integration. So अगर f of x का डेरिवेटिव g of x है, so integral of g of x with respect to x is f of x plus c. This plus c is called as what? Constant of integration or integral constant, right? One more definition is there. The expression which gives all antiderivative or primitive, that is called as what? Integral. The expression which gives all antiderivatives or primitive is called integral, and the process of integral is called what? Integration. इंटीग्रल फाइंड करने की जो भी प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं, राइट? दिस इज द डेफिनेशन. So this is the definition. This is integral sign. Integral sign IC निकालना चाहिए. This is g of x. This is called as the derivative. इसको डेरिवेटिव कहते हैं और इंटीग्रैंड भी कहते हैं. This is called as what? इंटीग्रैंड. और ये जो dx है, this is called as the integral with respect to x. This f of x is called as integral. This f of x is called as what? Integral or antiderivative or primitive. Antiderivative, primitive or integral. This plus c is called as what? Integral constant. This is the definition, right? After definition we start the rules of integration. इसके बाद हमने लिए थे rules of integration. Very simple rules, only 3 rules are there. Integral f of x plus g of x. Suppose we have to find the sum of two functions and their integral. So taking separate integral f of x with respect to x plus integration g of x with respect to x. Same for second rule for the difference. There is a difference of two functions and we have to find the integral. So that time also taking separate integral with respect to x. It is only for the sum and the difference, not for the quotient and product. Quotient और product के लिए ये नहीं होगा, ये सिर्फ sum और difference के लिए. The third rule, there is a constant in the product of any function, that is the coefficient. K is the coefficient of this. So that time we have to take on coefficient constant term outside the integral. This is the 3 rules of integration, basic rules. ये basic part है, definition and rules. उसके बाद
So integration and differentiation is completely reverse or inverse process of each other. अगर sin x का डेरिवेटिव cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x प्लस c होगा. दैट इज द बेसिक कंसेप्ट, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ फॉर्मूले वन बाय वन सब मैं रिवाइज करूंगा फॉर्मूले. सो स्टेप बाय स्टेप, इंटीग्रल ऑफ x रेस टू n का इंटीग्रेशन x रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c. x रेस टू 9 का इंटीग्रेशन x रेस टू 10 बाय 10 प्लस c. x रेस टू 11 का इंटीग्रेशन x रेस टू 12 बाय 12 प्लस c. राइट. नंबर थर्ड, सेकंड, इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन kx प्लस c. 2 का इंटीग्रेशन 2x, 3 का इंटीग्रेशन 3x, 4 का 4x. अगर विथ रिस्पेक्ट टू x है तो, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा होगा तो 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, k थीटा प्लस c. थर्ड फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x इज log x प्लस c. इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x इज व्हाट, log x प्लस c. इसके बाद कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो हम ट्रिगोनोमेट्री से रिलेट करते हैं. इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी. इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी. इंटीग्रल ऑफ टैन एक्स, ये हमने सब्स्टिट्यूशन इसको प्रूव किया था. टैन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी. इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी. इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इज लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी, और लॉग ऑफ टैन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 प्लस सी. log of tan pi by 4 plus x by 2 plus c. This is integration of sec x. Integral of cosec x dx is equal to log of cosec x minus cot x plus c, or log of tan x by 2 plus c. ये सब फॉर्मूले मैंने प्रूव करके दिए. ये फॉर्मूला प्रूव किया हमने बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन. ये तीनों फॉर्मूले हमने प्रूव किए थे. कोसेक एक्स के बाद इंटीग्रेशन है सेक एक्स इंटू टैन एक्स. सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव है. सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स. सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी. नंबर 11, इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, that is minus cosec x plus c. Number 12, integral of sec square x. sec square x से tan x का डेरिवेटिव है. That's why integral of sec square x dx is tan x plus c. Number 13, integral of cosec square x dx is equal to माइनस कॉट एक्स प्लस सी. सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टैन एक्स प्लस सी, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी. दिस आर द सम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर इंटीग्रेशन. ये सब उसके इंटीग्रेशन है. राइट. सो मैंने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले रिवाइज नहीं किए, सिर्फ इंटीग्रल के फॉर्मूले रिवाइज कर रहा हूँ. इसके बाद कुछ अदर फंक्शंस है, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू x dx is equal to e raised to x plus c. Integral of a raised to x is equal to a raised to x upon log a plus c. E raised to x, a raised to x. Now 16, e raised to x, a raised to x. अब इंटीग्रेशन है 1 अपॉन अंडर रूट 1 minus x square dx is equal to either sin inverse x plus c or minus cos inverse x plus c.
एक तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी लिखो, नहीं तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी लिखो, बिकॉज साइन इनवर्स एक्स का ये डेरिवेटिव है, माइनस कॉस इनवर्स का भी यही डेरिवेटिव है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल इज tan इनवर्स एक्स प्लस सी, और वी कैन राइट आल्सो माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रल 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रल एक तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी है, और अदर वी कैन राइट आल्सो माइनस कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। दीज आर सम बेसिक formulae of indefinite integration, right? This formulae are completely depends on the derivative, because इसका derivative ये है, that's why इसका integration क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, right? This is called as integrand, this is called as the antiderivative, or that is called as what, primitive, or also called as what, integral. Okay, so these are the formulae. So these are definition, rules and basic formula of integration. Definition हुई, rules of integration भी हुआ, और उसके बाद formula of integration भी हुआ. Now methods of integration, methods of indefinite integration. So basically there are three major methods of integration. Methods. First method by substitution, integration by substitution. Second method, integration by parts, and third method, integration by partial fraction. Integration by partial fraction. So total topic पे यही three major methods है, but each method contains lots of types. So by substitution का एक theorem है, the concept of by substitution method, कब हमें अप्लाई करना है मेथड, if x is equal to phi of t is a differentiable function of t, x is equal to phi of t, then integration f of x dx is equal to f of phi of t into phi dash of t dt. So this is a statement of theorem of integration by substitution method. If x is equal to phi of t is a differentiable function of t, then f of x dx, x is equal to phi of t, and f dash of t, that is the phi dash of t, that is the derivative of phi of t. Phi of t का derivative phi dash of t. This is a statement of the theorem. उसके चार corollary भी है. Corollary नंबर 1, अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स जी ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, एक्स की जगह पर लीनियर ए एक्स प्लस बी, दैट इज ऑल्सो जी ऑफ ए एक्स प्लस बी, बट एक्स का कोएफिशिएंट राइट अपॉन ए प्लस सी into 1 by a or upon a. That is the first corollary. Second corollary ऐसी है, integration f of x into f dash of x dx, f of x raised to n into f dash of x dx. f of x का डेरिवेटिव कितना, f dash of x, पावर n है, तो इसका आंसर बन जाएगा f of x raised to n plus 1 divided by n plus 1 plus c. This is the second corollary. Third corollary, numerator f dash of x, denominator f of x dx. So it becomes log of f of x dx. Complete denominator का differentiation अगर numerator में है, so we can write the integral of such type of function is log of denominator plus c. F dash of x upon f of x, that becomes what, log of f of x plus c. Number 4th corollary, numerator f dash of x, denominator root f of x, f dash of x upon root f of x, that is equal to 2 root f of x plus c, 2 root f of x plus c. To the point of view of board examination, this theorem is very important for 4 marks.
2 marks for this theorem and 2 marks for any 2 corollary of out of 4. दो इसमें से कौन से भी 2 corollary एग्जाम में आते हैं, 1 मार्क के लिए और 2 मार्क्स इसके लिए. ऐसे बहुत बार बोर्ड एग्जाम में थ्योरम आ गया है. दिस इज द थ्योरम ऑन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. सो यहाँ से सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था. तो सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारे टाइप्स हैं. अब ओके एक एक टाइप में उसका रिवाइज करता हूँ. सो पहला टाइप था उसका टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन. इंटीग्रेशन a cos x plus b sin x divided by c cos x plus d sin x, first type dx, or integral a e raised to x plus b divided by c e raised to x plus d dx. a e raised to x plus b divided by c e raised to x plus c. और ये फॉर्म में एग्जाम्पल है. सो देयर इज स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, वही हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा तभी उसका आंसर बन जाएगा. फॉर्म इज व्हाट, a cos x plus b sin x upon c cos x plus d sin x, or a e raised to x plus b upon c e raised to x plus d. There are 7 to 10 examples on this type. So there is a substitution, that is what, put numerator is equal to numerator. लिखता हूं क्या है न्यूमरेटर, a cos x plus b sin x is equal to a into d by dx of c cos x plus d sin x plus b. Numerator is equal to a into derivative of denominator plus b, derivative of denominator plus b. अब ये होने के बाद इसको मल्टीप्लाई करना और सॉल्व करना. अगर ये फॉर्म में एग्जांपल a cos x plus b sin x upon c cos x plus d sin x, or a e raised to x plus b upon c e raised to x plus d, that time put a numerator is equal to a cos x plus b sin x is equal to a into denominator, a into denominator plus b into derivative of denominator. और ये फॉर्म में एग्जाम्पल है तो यही उसका यही सब्स्टिट्यूट करना है. दैट इज a e raised to x plus b न्यूमरेटर इज इक्वल टू a into डिनोमिनेटर प्लस b into derivative of denominator. So important how to find the unknown term, constant term AB by comparing the coefficient of same term, means cos x, sin x or e raised to x or constant term, right? This is the first type of integration by substitution. So उसके बाद integration by substitution के first type के बाद एक second type था, that is very very important, and that type is known as the some special type of integrals or standard integrals. That is the second type. Second type, some special integrals. ये सेकंड टाइप है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का. दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट मेथड. ये सब इसके बारे में चल रहा है हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल कौन से हैं? देयर आर 7 फॉर्मूले. फर्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1/a² plus x² dx. सेकंड फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1/x² minus a² dx. थर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1/a² minus x² dx. Formula number 4, integration 1/√a² minus x² dx. Formula number 5, 1/√x² minus plus a² dx. Formula number 6, 1/√x² minus a² dx. And formula number 7, 1/x² minus a² dx.
So these are the formulae that is called as the some special formulae, some special type of integral or standard integrals. So ये 7 formulae जो this formulae are one of the important formulae of this topic indefinite integration. So पूरा remaining जो जितना भी syllabus है यही formula पर depend करेगा. इसमें सबसे एक common thing है, सब में x का coefficient कितना है 1 है. So that is important. So there should be the coefficient of x or x square. जो x square की कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए. सो फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट इज 1 बाय tan इनवर्स x बाय. फॉर्मूला फॉर सेकंड इज 1 बाय 2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c. फॉर्मूला फॉर थर्ड 1 बाय 2a log ऑफ a प्लस x upon a minus x plus c. Formula number 4th sin inverse x by a plus c. This is log of x plus under root x square plus a square plus c. This is log of x plus under root x square minus a square plus c. And last is 1 by sec इनवर्स x बाय a प्लस. ये फॉर्मूले है सबके सब, ये सब टोटल फॉर्मूला विथ प्रूफ है, सब मैंने प्रूव करके दिया है. बट दिस इज रिवीजन ऑफ दिस 7 फॉर्मूले. सो दिस 7 फॉर्मूले इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ द टॉपिक. दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब जो थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट इज integral of the type 1 upon a plus b cos x plus c sin x dx or 1 upon a plus b cos x or 1 upon a plus b sin x dx. दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अभी थोड़े टाइप इंटरचेंज भी हो सकता है. थर्ड टाइप में हम ये पुट किया था, सब्स्टिट्यूट हियर tan x बाय 2 इज इक्वल टू t. यहाँ पर हमने ये a b c जो दैट इज कॉल्ड एज ए कांस्टेंट टर्म. यहाँ पर साइन और कॉस ही होना चाहिए, दूसरा कौन सा भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं चलेगा. सो दैट टाइम वी हैव टू सब्स्टिट्यूट tan x बाय 2 इज इक्वल टू t. सो dx इज इक्वल टू 2 dt upon 1 plus t square. Sin x is equal to 2t upon 1 plus t square. Cos x is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square. So यही उसकी मेजर है. अगर dx की जगह पर क्या रखना है, 2 dt upon 1 plus t square. Sin x की जगह 2 dt upon 1 plus t square. Cos x is what? 1 minus t square upon 1 plus t square. Either this form or this or this. Right? Number 4, fourth type, that is dx divided by a plus b cos 2x c sin 2x or 1 upon dx divided by a plus b cos 2x or 1 upon a plus b sin 2x dx. सिर्फ x की जगह पर क्या है, 2x है. sin 2x, यहाँ पर sin x था, यहाँ पर sin 2x. cos x था, cos 2x. राइट, एब्सोल्युटली सेम प्रोसीजर. tan x बाय 2 इज इक्वल टू t पुट किया था, यहाँ पर tan x इज इक्वल टू t पुट करना है. सो डेफिनेटली यू विल गेट dx इज इक्वल टू dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर. sin 2x is equal to 2t divided by 1 plus t square. Cos 2x is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square. This is the fourth type. हमारा fifth type था 1 upon a plus b cos square x plus c sin square x or 1 upon
ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स. ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन स्क्वायर एक्स. सो हियर इंपॉर्टेंट, यहाँ पर x था, यहाँ पर 2x, यहाँ पर क्या स्क्वायर है. और ऑल थ्री मेथड्स हैविंग आइदर साइन और कॉस, नॉट मोर देन दैट. इसको सेक भी नहीं चलेगा, कोसेक भी नहीं, और टैन और क्वाड भी नहीं. सो ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है. दिस ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो. ओके, सो हियर दो स्टेप आपको फॉलो करना है. पहली स्टेप है, दो स्टेप फॉलो करना. डिवाइड बाय आइदर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो और साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो. डिवाइड बाय आइदर कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स. सेकंड स्टेप है यहां पर, वो आपको फॉलो करनी है. वो है पुट tan x इज इक्वल टू टी. अगर साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो आपको पुट करना पड़ेगा cot x इज इक्वल टू टी. आइदर दिस और दिस, आइदर tan x इज इक्वल टू टी और cot x इज इक्वल टू टी. अगर आपने cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया है तो sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा. सो दैट टाइम tan x इज इक्वल टू टी पुट करो. इफ वी डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय sin स्क्वायर एक्स, so 1 by sin square x that become minus cosec square x. So that time we have to put what, cot x is equal to t. जहाँ पर sec स्क्वायर है वहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखो. cosec स्क्वायर x है जहाँ पर क्या लिखो, 1 प्लस cot स्क्वायर x. दिस इज द फिफ्थ टाइप ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. ओके, नाउ टाइप नंबर 6, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx और 1 अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx. सेवंथ टाइप था इसका, लीनियर इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वैसे ये तो टाइप नंबर सेकंड है, बहुत पहले टाइप हो गया. थोड़ा सीक्वेंस चेंज हुआ यहाँ पर, लेकिन ये बहुत पहले हुआ था. स्टैंडर्ड इंटीग्रल होने के बाद ये टाइप है. नंबर नेक्स्ट 1 अपॉन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स. अगर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ये टाइप है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट इज फर्स्ट, make the coefficient of x square as unity. Make the coefficient of x square as unity. Means x square का coefficient 1 ही होना चाहिए. If it is not 1, then taking that term outside the integral, outside the denominator. Second step we have to follow for getting perfect square. For getting perfect square or completing square, we add and subtract b square upon 4a square. ये टर्म आपको ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है. व्हाई? बिकॉज ऑफ फॉरगेटिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, फॉरगेटिंग परफेक्ट स्क्वायर. कहाँ पर ऐड करना है, कहाँ पर सब्सट्रैक्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया मैंने. इन बिटवीन द टर्म ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म और एक्स के बीच में उसको ऐड करना है पहले, उसके बाद करना है सब्सट्रैक्ट करना है. एंड दैट राइट द कंप्लीट स्क्वायर एंड अप्लाई द करेक्ट एप्रोप्रिएट फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड इंटीग्रल और सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल. ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक. न्यूमरेटर में लीनियर इक्वेशन है, सो दैट टाइम सब्स्टिट्यूट लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस बी. ये दोनों सेम, आइदर दिस और दिस. सिर्फ चेंज क्या, यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं, यहाँ पर स्क्वायर रूट है. सो व्हाट इज द प्रोसीजर? पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस बी. सॉल्व करो, डेरिवेटिव फाइंड करो. ये x का कोएफिशिएंट, लेफ्ट हैंड साइड x का कोएफिशिएंट इक्वेट करो. कांस्टेंट टर्म इक्वेट करो लेफ्ट टू राइट. यू विल गेट द इंपॉर्टेंट टर्म कैपिटल A एंड कैपिटल B. एंड आफ्टर उसके बाद आपको क्या करना है,
करेक्ट स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्मूला अप्लाई करना है. दिस इज 6 एंड 7, राइट. उसके बाद और एक मेथड, बहुत कम एग्जाम्पल उस पर, वो ऐसी एक मेथड थी, दैट इज 1/a cos x प्लस b sin x dx. इंटरचेंज हो सकता है, पहले साइन बाद में कॉस भी हो सकता है. दैट टाइम हमने पुट किया तो a इज इक्वल टू r cos थीटा, b इज इक्वल टू r sin थीटा, r इज इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a. बहुत कम एग्जाम्पल इस पर, मैंने जो भी एग्जाम्पल थे, जितने एग्जाम्पल थे सब लिए. सो दिस इज द लास्ट type of integration by substitution method. So integration by substitution, this is the first method and very important method. So after this 8 types, and there are lots of examples, lots of minor concept of that by substitution. So मैंने सब लिए, सब एक्सरसाइज के पूरे एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करके दिए. सिर्फ आपको उसकी प्रैक्टिस करना है. इंटीग्रेशन परफेक्ट होगा, आई विल टेल यू द मैथमेटिक्स विल बी डेफिनेटली परफेक्ट. ओके, अब नाउ बाय पार्ट्स. Integration by parts. Second, by parts they are product of two function. ये first type है उसका, integration u into v dx. So the rule is, इसका proof भी है, u into integration of v dx minus integral of, in bracket, derivative of u integral of v dx. This u and v, the choice, proper choice is depends on this order, LIATE. L stands for logarithmic function, I stands for inverse trigonometric function, A stands for algebraic function, T stands for trigonometric function and E stands for exponential function. So u पहला कौन सा u लेना है, कौन सा v लेना है, ये ऑर्डर फॉलो करो. इज इट क्लियर? सो u into v, first into integration of second minus integral of derivative of first into integral of second dx. So this is the first type of integration by parts. Okay, so that u is a differentiable function and v is integrable function. पहला फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, दूसरा फंक्शन इंटीग्रल होना चाहिए. अगर ट्रिगोनोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल दोनों साथ में है तो ट्रिगोनोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल बोथ आर इंटीग्रेबल एंड बोथ आर डिफरेंशिएबल. सो वी कैन अप्लाई आइदर फर्स्ट इज एक्सपोनेंशियल देन ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करो, नहीं तो पहले ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करो बाद में एक्सपोनेंशियल अप्लाई करो, बोथ आर सेम. इफ देयर इज अ सिंगल फंक्शन, एक ही फंक्शन है, फॉर एग्जांपल tan इनवर्स x और log x, tan inverse x is not integrable, log x is also not integrable. पहले दो फंक्शन, logarithmic and inverse function. So that time we have to apply into one as a second function. उसको into one करना है और second function उसको consider करना है. One is a constant is algebraic function, and then solve by u into v rule. So we will get the answer, we will get the integral. That is not a formula. Okay. सो log x का अगर इंटीग्रल फाइंड करना है तो उसके साथ में इंटू वन ले लो और वो सेकंड फंक्शन एंड सॉल्व बाय यूजिंग बाय पार्ट्स मेथड, दैट इज u into v. सेकंड, देयर आर 3 फॉर्मूले, इंटीग्रेशन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इंटीग्रल अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इंटीग्रल अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. विथ प्रूफ, बोर्ड का फेवरेट एग्जाम्पल. Every examination, almost every examination, there is a compulsory one question on this formula as a prove that. ये बोर्ड में फिक्स एग्जाम्पल रहता है 3 मार्क के लिए, आइदर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड. दिस इज अ सेकंड टाइप ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. सो लुक एट द फॉर्मूला, प्रूव करके दिया मैंने ये सब. x/2 लर्न करने का तरीका, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, प्लस a स्क्वायर बाय 2 प्लस a स्क्वायर बाय 2, यहां पर माइनस a स्क्वायर बाय 2. देखो यहां पर माइनस a स्क्वायर है, यहां पर प्लस a स्क्वायर है, यहां पर भी प्लस a स्क्वायर है.
So it is a square by 2, but here is what? Minus a square by 2. इनके रेसिप्रोकल के फॉर्मूले, पहले का रेसिप्रोकल का फॉर्मूला है साइन इनवर्स x बाई, इट इज लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट a square plus x square or x square plus a square plus c here, and here is log of x minus under root x square minus a square plus c. This is the second. ये तीन formulae with proof, and there are some typical 10 examples, some 10 to 12 examples on this. This is second type. अब third type जो है वो है e raised to x in bracket f of x plus f dash of x dx. f of x, f dash of x is a derivative of f of x, and there is a product of e raised to x. यहाँ पे एक मल्टी प्रोडक्ट में एक टर्म है e raised to x. ये प्रूफ है इसका भी, इसका इंटीग्रल है e raised to x f of x plus c. f of x derivative of dash of x. So answer is what? E raised to x f of x plus c. Number fourth, px plus q into under root ax square plus bx plus c dx. Linear into under root quadratic, linear upon under root quadratic. ये और a यहाँ पर क्वोशंट है, यहाँ पर प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट है, दैट्स वाई इट इज अ बाय पार्ट्स मेथड. ओके, सो यही उसको फॉलो करना है. सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करना है. आफ्टर सब्स्टिट्यूशन यू विल गेट इन दिस फॉर्म, आइदर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फॉर्म. ये इंटू d by dx of quadratic equation plus b, and ये भी फाइंड करना सबसे important. by comparing the coefficient of x and constant term you will get the important capital A and capital B. उसके बाद इन तीनों में से एक फॉर्मूला आपको कन्वर्ट करना है, अप्लाई करना है. This is 1 2 3 4. These are 4 types of integration by parts. Okay, so इसके बाद मैं पार्शियल फ्रैक्शन लेता हूँ. Okay, now let us see the last type of integration, last method of integration, that is integration by partial fraction. अब by partial fraction कब है? This is the form numerator f of x, denominator g of x. This function is called as a rational function. Rational function. f of x upon g of x, polynomial of x, polynomial of x. But there are three cases. Degree of f of x is greater than degree of g of x. Second case, degree of f of x is less than डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स. ऊपर लेस देन करेंगे, ये ग्रेटर देन. एंड थर्ड केस, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स. इट इज एब्सोल्युटली रिवीजन. ये सब हुआ है, सिर्फ मैं एक वीडियो ऐसा बना रहा हूँ जिससे टोटल टॉपिक की रिवीजन हो. अब लास्ट टाइप चलो अपना बाय पार्शियल फ्रैक्शन. f of x upon g of x, this function is called as rational function. f of x and g of x are the polynomial of x, but there are three cases. Degree of numerator is less than degree of denominator, degree of numerator is greater than degree of denominator, or degree of numerator is equal to degree of denominator. So this is called as the proper rational function. ये है proper rational function. And these are called as improper rational function. और ऊपर की डिग्री नीचे से कम है, improper को proper हम कर सकते. If rational function is improper rational function, so we can convert improper rational function into proper rational function by using either division method or adjustment method. अगर ऊपर की डिग्री नीचे से ज्यादा है, so we can divide it by division method and we convert into, that is, quotient plus remainder upon divisor. Now this becomes the proper function, quotient plus remainder upon divisor. So
डिवाइड कब करेंगे? जब ऊपर की डिग्री नीचे से कम है तब डिवाइड हो सकता है। डिवाइड करने का क्वोशंट जो ऊपर आता है क्वोशंट, जो बॉटम में आता है वो रिमाइंडर रहता है, और ये क्या होता है? डिवाइजर, साइड का डिवाइजर, राइट। अगर ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री सेम है, ऊपर एक स्क्वायर है नीचे एक स्क्वायर है, ऊपर एक्स क्यूब है नीचे एक्स क्यूब है, दैट टाइम हम उस एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट कैसे? जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है ऊपर वो सेम लिखना है और एक एक टर्म बैलेंस करना है। दैट इज कॉल्ड एज अ सिंपल एडजस्टमेंट मेथड। दिस इज कंप्लीटली लॉजिक टाइप, ओके। और ये उसके बाद डेफिनेटली दिस इम्प्रॉपर फंक्शन कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फंक्शन। बट द फर्स्ट केस, दिस केस इज द रैशनल पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। कब? जब फंक्शन प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। इट मीन्स व्हाट? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। सो देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप, डिनोमिनेटर एक्सप्रेस एज नॉन रिपीटेड linear factor, linear factors. Second case, denominator expressed as repeated linear factor, repeated linear factors. And third case, non-repeated quadratic factors. Quadratic factors, non-repeated linear factors, repeated linear factors, non-repeated quadratic factor. This all about denominator. Denominator में linear factor किसे कहते हैं? x minus a, x plus a और 2x plus b. This is called as the linear factor. Degree 1, that is linear factor. रिपीटेड किसे कहते हैं? x माइनस ए होल स्क्वायर, x माइनस बी होल क्यूब. दिस इज कॉल्ड एज द रिपीटेड लीनियर फैक्टर. क्वाड्रेटिक फैक्टर कौन सा होता है? एक्स स्क्वायर माइनस ए, एक्स स्क्वायर प्लस बी. दिस इज क्वाड्रेटिक फैक्टर. So this all about denominator. The denominator contains non-repeated linear factor, repeated linear factor, non-repeated quadratic factor. तो क्या करना है? सपोज ऐसा है, एक एक टाइप बताता हूँ मैं आपको. x माइनस ए है और दूसरा x माइनस बी है, 2 फैक्टर है. अगर डायरेक्टली फैक्टर नहीं दिए तो हम, अगर एक खाता क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वी कैन फैक्टराइज, यू विल गेट डेफिनेटली 2 डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स, मे बी रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स. अगर डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, नॉन रिपीटेड है, सो ये अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकंड फैक्टर. अगर और 3 फैक्टर है तो ये अपॉन फर्स्ट फैक्टर, बी अपॉन सेकंड फैक्टर, सी अपॉन थर्ड फैक्टर. दिस इज द, एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय कैलकुलेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी. सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ये इंपॉर्टेंट फाइंड करना है. ये फाइंड करने की सब टेक्निक मैंने, सब टाइप मैंने टीचिंग में एक्सप्लेन की, प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन की है. रिपीटेड लीनियर फैक्टर कैसा है? सपोज एक x माइनस ए होल स्क्वायर है, दूसरा x माइनस बी, एक तो रिपीटेड है, तो उसको लिखना है a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एंड प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी, जो नॉन रिपीटेड एक है. न्यूमरेटर डजंट मीन, सपोज न्यूमरेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिनोमिनेटर में एक ही फैक्टर है वो, बट 3 टाइम्स रिपीट है. डेफिनेटली दिस इज अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन. यही केस चालू है हमारे. सो दैट टाइम 3 रिपीट, एक ही फैक्टर 3 टाइम्स है, तो ये अपॉन एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए क्यूब. अगर नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर कब होता है? एक फैक्टर x माइनस ए है और दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस बी है, एक्स स्क्वायर माइनस बी है. एक तो लीनियर फैक्टर है, सो उसको हम क्या करेंगे? a अपॉन एक्स माइनस ए, लीनियर क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर bx प्लस सी. क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है bx प्लस सी. अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर पहले है, बाद में लीनियर फैक्टर है, सो दैट टाइम क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर में क्या लिखता था? ax प्लस बी, और लीनियर फैक्टर के ऊपर सिर्फ c. गॉट इट?
सो राइट, अगर दो क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं तो ax प्लस बी एंड cx प्लस डी, ax प्लस बी अपॉन फर्स्ट क्वाड्रेटिक फैक्टर, cx प्लस डी अपॉन सेकेंड क्वाड्रेटिक फैक्टर. So this is all three types of by partial fraction. By partial fraction is for rational function, and that rational function must be proper rational function. Proper rational function किसे कहते हैं? When the degree of numerator is less than degree of denominator. ये both are polynomial of x, right? This is the third type, that is integration or indefinite integration by partial fraction method. So all exercise 3.1, 3.2, 3.3 and 3.4 with miscellaneous, और 3.2 में 3.2a, 3.2b, 3.2c ये सब मैंने ऑलमोस्ट 97% एग्जाम्पल मैंने लिए. एक आध दूसरा एग्जाम्पल मैंने स्किप किया है. अगर ये टॉपिक आपको परफेक्ट करना है तो हर एक टॉपिक में 3 कैटेगरी होती है. एक होती है सॉल्व एग्जाम्पल, दूसरी होती है एक्सरसाइज, और तीसरी क्या होती है? मिसलेनियस एक्सरसाइज. सॉल्व एग्जाम्पल आपको करना है, एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करके दिए हैं वो भी कॉपी करना है, और मिसलेनियस जो मैंने दिया है सॉल्व करके दिया है वो भी आपको कॉपी करना है. 100% टेक्स्ट बुक फॉलो करो, 100% you will get sure success. So this is one of the biggest topic. 32 video lectures on this topic I have already done. So right, this is extra last video for revision of this topic, indefinite integration. So I am grateful in announce that, मैं खुशी से आपको अनाउंस करता हूँ कि ये टॉपिक हमारे यहाँ पर खत्म हुआ. So indefinite integration is over, but integral calculus is remaining. इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन में तुरंत नेक्स्ट डे स्टार्ट करूँगा. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.